બીજી વાત, આજે આપણા વચ્ચે કોઈ તાલુકા લેવલ નહીં, જિલ્લા લેવલ નહીં, ગુજરાત સરકારોના નહીં, પણ દેશ લેવલના જે બંને મહાનુભાવો, એક નહીં બંને એવા દરેક માટે જે ક્રાંતિકારી એવા સન્માનીય કનૈયા કુમાર સાહેબ એવા ને એવા આપણે ખૂબ સદભાગીએ છીએ કે આપણે એક એવા નેતા મળ્યા છે જે अरे यार लाइव हो भाई अमित के लाइव कर दो ગુજરાત સરકારના જે પોતે એક હું માર્ગદર્શી તો એક સમાન માનું છું એવા જે આપણે એક નેતા મળ્યા છે એવા જિગ્નેશભાઈ મેવાણી સાહેબ, પ્રભારી ગેમરભાઈ, અમારી તમામ કોંગ્રેસ ટીમ અને અમારા એક સન્માનીય શરૂઆતથી આજ દાડા સુધી પોતાની ઉંમર ને પણ એક બાજુ રાખી અને આવો કોઈ મેળાવડો હોય તો જે પોતે હાજરી આપે છે એવા સન્માનીય અમારા માજી પ્રમુખ જિલ્લાના એવા દર્શનભાઈ સાહેબ, મંચસ્થ ઉપસ્થિત આપ સૌ સામે બેઠેલા આપ સૌ અમે હમણાં તાજેતરમાં 6 થી 7 મિટિંગો કરી અને દરેક મિટિંગ એકબીજાના કરતા પણ ચડિયાતી સમય લઈ અને જે ઉપસ્થિત આપ સૌને મહેમાનોનો આપ સૌનો હું અમારા પરિવાર હવે આપણા ખૂબ જ ઝડપથી સ્વાગત વિધિ બતાવવાની છે. આપણા મહેમાન માનનીય કનૈયા કુમારજી અને જિગ્નેશભાઈ મેવાણીનું સૂતરની ઓટી પહેરાવી વડગામ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અને વડગામ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિની ટીમને વિનંતી કરું કે તેઓ સૂતરની આંટી પહેરાવી સ્વાગત કરે. આયો જિગ્નેશ મેવાણીના પેજ ઉપર જિગ્નેશ મેવાણી ખૂબ જ ઝડપથી આવી જાય. હાલો એસસીસીએલના ચેરમેન બાબુભાઈ જગાણીયા અને એમની ટીમને પણ વિનંતી કરું કે શાલ અને સૂતરની આંટીથી મહેમાનોનું સ્વાગત કરે. લઈ લો તમારી રીતે, લઈ લો તમારી રીતે લઈ લો. યુથ કોંગ્રેસની ટીમ વતી પ્રમુખ ફિરદોસભાઈ તથા એમના મિત્રોને વિનંતી કરું કે કનૈયા કુમારજી અને જિગ્નેશભાઈનું સૂતરની આંટી પહેરાવીને સ્વાગત કરે. એમના પેજ ઉપર લાઈવ ચાલુ છે. અરે યાર ડાયરેક્ટ વડગામ ગામના સરપંચ શ્રી અને ડેપ્યુટી સરપંચને વિનંતી કરું કે તેઓ વડગામ ગામ વતી સૂતરની આંટી પહેરાવીને સ્વાગત કરે. ખૂબ જ ઝડપથી આપણે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેથી કરી આપણે વક્તાઓને સાંભળી. મહેસાણાથી પૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ અને વડકર સમાજના અગ્રણી ઘનશ્યામભાઈ સોલંકી અને કનુભાઈ મિસ્ત્રીને વિનંતી કરું કે તેઓ સૂતરની આંટી પહેરાવી સ્વાગત કરે. હું તો નહીં પાડી શકું, લાઈવ ચાલે. જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના આગેવાનો અને જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યોને વિનંતી કે તેઓ સૂતરની આંટી પહેરાવી બંનેનું સ્વાગત કરે. કિસાન કોંગ્રેસ, મહિલા કોંગ્રેસ ના પ્રમુખોને વિનંતી, એસસીસીએલના પ્રમુખને વિનંતી કે તેઓ સૂતરની આંટી પહેરાવીને સ્વાગત કરે. સાજીદભાઈ મકરાણી અને માઇનોરિટી સેલના તમામ મિત્રોને વિનંતી કે તેઓ સૂતરની આંટી પહેરાવીને સ્વાગત કરે, પાઘડી પહેરાવીને સ્વાગત કરે. લાઈવ કરું છું.
हम थोड़ा વડગામ મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ ને વિનંતી કે તેઓ પણ રમીલાબેન ઠાકોરને વિનંતી કે તેઓ બંને મહાનુભાવોનું અને એમની ટીમને વિનંતી કે તે બંને મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરે. સ્વાગત વિધિ પતી જાય સ્ટેજથી નીચે ઉતરવા વિનંતી. लाइव चालू ખૂબ જ ઝડપથી આપણે સ્વાગત વિધિ પતાવી દઈએ. હવે આપણા બંને નેતાઓનું વક્તવ્ય સાંભળવાનું છે. હવે જિગ્નેશભાઈને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાનું પ્રવચન કરે. તમામ સાથીઓને વિનંતી તેઓને પરિચય છે મારો, તેઓને પરિચય છે મંદિરમાં મારો, મસ્જિદમાં ખુદા ઓળખે છે, જિગ્નેશ મેવાણી અને તો સમગ્ર ભારત ઓળખે છે. સાથીઓ, આપણી વચ્ચે વડગામમાં અત્યારે એક બાજુ મનીલાલ છે, એટલે મણી એટલે એક બાજુ મનીલાલ છે, બીજી બાજુ માટીનો લાલ છે. તે માટીના લાલને વિનંતી કરીએ કે પ્રવચન કરે. अरे लाइव करવું દે યાર. મંચ ઉપરના સૌ સન્માનીય સાથીઓ, હું લાંબો સમય નહીં લઉં. તમારી જે મને પણ ઉત્સુકતા છે અને એને સાંભળવાની, પણ સૌથી પહેલા હું યાદ કરું વડગામ તાલુકા કોંગ્રેસના આપણા સન્માનીય પ્રમુખ માનનીય અશરફભાઈ, કાર્યકારી પ્રમુખ સાથી રફીકભાઈ, વડીલ આગેવાન ફતાભાઈ કરેડ, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આપણી સૌ બહેનો, વસુમતીબેન, આશાબેન, સાયરાબેન, લક્ષ્મીબેન, ભલભલાની કાનની બૂટ પકડે એવા દલસન કાકા, સાજીદભાઈ મકરાણી, પ્રવીણભાઈ, બાજુમાં ડામરાજી, દેવું કાકા, સૌજીભાઈ કોદરામ, પસવાદરજી અમારા લક્ષ્મણભાઈ, ઉસ્માનભાઈ મુખી, કાળુભાઈ, પ્રકાશભાઈ, ગેમરભાઈ અમારા પ્રભાવી, જે 4 મહિનાથી મહેનત કરે છે, એમના માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. આપ સૌ મંચ ઉપરના સન્માનીય સાથીઓ છે. ઓડિયન્સમાં પણ શમસુદ્દીનભાઈ, ઈશ્વરભાઈ જગાણા, બધા અનેક મિત્રો, રતિલાલ કાકા, સૌ સન્માનીય મિત્રો બેઠા છે. કોઈનું નામ ના લઈ શકું. બળદેવભાઈ, મહેશભાઈ પેપોડ, અયુબભાઈ અમારા વાસણાથી, ટાઈગરભાઈ, કોઈનું નામ ના લઈ શકું તો માફ કરજો. મફાજી બેઠા છે, મીડિયાના મિત્રો. હું બહુ ટૂંકમાં વાત કરીશ. ફોર્મ ભરવાનો સમય પણ છે અને આપણે બધાએ કરી અને સાંભળવાના છે. સાથીઓ, ગુજરાતની વિધાનસભાની આ ચૂંટણી, ભાઈ આ બાજુ મિત્રોને વિનંતી કરું જરા શાંતિ જાળવે. ગુજરાતની આ વિધાનસભાની ચૂંટણી હું એવું માનું છું કે દેશના બંધારણ અને દેશના લોકતંત્રને, સંવિધાનને બચાવવા માટેની ચૂંટણી છે. અને મારા અણુને ખાતરી છે વડગામ એમાં પાછું નહીં પડે. મારી સામેના કેમ્પના ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિત્રોને એટલું જ કહેવાનું, અલે આ તો વડગામ છે, અહીંયા કોંગ્રેસ જ જીતે. જિગ્નેશભાઈ, પછી વડગામ એ સદાય કાયમ દાયકાઓથી કોંગ્રેસની સાથે રહ્યું છે. વડગામે ક્યારેય પોતાની કોની એકતાને તૂટવા નથી દીધી. એ વડગામની સંસ્કૃતિ છે. અહીંયા શમશેરપુરાના ચૌધરી સમાજના ભાઈઓ એ તાજિયામાં પણ શરીક થાય અને એના ગોળા ગામના જાગીરદાર કાનુડાની મટકી પણ ફોડે. આ વડગામ છે. આ કોની
એકતા જો આપણી ટકેલી રે તો બાકીના એને તો છોકરા કાઢી નાખે. આ ચૂંટણીમાં જાત જાતની વાતો આવશે. આ કોંગ્રેસ અને ભાજપની ચૂંટણી તો ખરી, પણ ડંકાની ચોટ ઉપર કહું છું, આ ચૂંટણી એ થોડી મેવાણી અને મોદીની પણ ચૂંટણી છે. બહુ જ પ્રેમથી મને આસામની જેલમાં લઈ ગયા હતા અને લાકડા તોડ આંદોલન વડગામની જનતાએ આખા ગુજરાતે કર્યું અને એટલા માટે પાછો આવ્યો છું તમારી દુઆઓના કારણે. તો સામે વડગામને હું પણ મારું વચન આપું છું કે 5 વર્ષ જેવો તમારી વચ્ચે રહ્યો છું, આવતા 5 વર્ષ પણ એવો જ તમારી વચ્ચે રહેવાનો એવું ડોક્ટર ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકરની સહજ. લોકો અનેક પ્રકારની વાતો ગઈ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મારી વિરુદ્ધ કરતા હતા. આજે એ જ મિત્રો, એ જ વડગામની જનતા એવું કહે છે કે સૌને સાથે લઈને કોઈ ચાલે તો ફક્ત જિગ્નેશ મેવાણી. કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ ખોટી પ્રવૃત્તિમાં, લાંચ રૂશ્વતમાં, ટકાવારીમાં જિગ્નેશભાઈ કે તેમની ટીમના એક પણ માણસની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ આરોપ કરી શકતું નથી. ગુજરાતની અંદર બેરોજગારી અને મોંઘવારીનો સવાલ એની ચરમસીમા ઉપર છે, પણ ઉત્તર ગુજરાતની અંદર બેરોજગારી અને મોંઘવારીની સાથોસાથ પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન અત્યંત વિકટ છે. બરાબર આવા સમયે 2017માં જ્યારે ચૂંટણીનું ફોર્મ ભર્યું ત્યારે આખું વડગામ એક સૂર્ય મને કહેતું હતું કે જિગ્નેશભાઈ બીજું કંઈ કરો કે ના કરો, નર્મદાનો પ્રોજેક્ટ કર્માવત માટે મંજૂર કરાવજો, એટલું તમને ચોક્કસ કહીશ. આવેદન પત્રો આપ્યા, અરજીઓ કરી, રેલીઓ કરી, ધરણાઓ કર્યા. ગુજરાતની વિધાનસભાના મંચ ઉપર પહેલી વખત મુક્તેશ્વર ડેમ અને કર્માવત તળાવની રજૂઆત કરી અને આજે 192 કરોડનો પ્રાણીનો પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરાવ્યો છે. આ સરકારે હાથ ખંખેરી લીધા હતા. એક વડગામનો નાગરિક, વડગામના કોઈ પણ સમાજના વ્યક્તિને પૂછી લો, ઓક્સિજનના એક ટીપા માટે આપણે તરસતા હતા. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો ક્યાં હતા? ત્યારે NSUI અને યુથ કોંગ્રેસના અમારા સાથીઓ એ રાત્રે 4 વાગે ઓક્સિજનની લાઈનમાં ઉભા રહેતા હતા. રાત્રે 4 વાગે. આ કોંગ્રેસ પાર્ટીનું કલ્ચર છે. અને સાથીઓ, આ તમારા ધારાસભ્યએ ફૂલની પાંખડી એકત્રિત કરવા, હાથમાં ડબ્બો લઈને ફરાળો કરવા માટે નીકળ્યો, પણ એટલી પેલી મુરાદ આ લોકોની કે ખોટી ફરિયાદ કરી અને કે રાજ્ય સરકારનો ઓક્સિજન પ્લાન્ટ બને એની પહેલા મેવાણીનો ના બનવા જોઈએ, આવી દાજ રાખવાના કારણે ખોટી ફરિયાદ કરીને પ્રોજેક્ટ રોકાયો. તો તમારો આ ભાઈ, તમારો આ દીકરો હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવીને પણ સ્પેશિયલ કેસમાં પણ ઓક્સિજન પ્લાન્ટની ગ્રાન્ટ લઈને આવ્યો. સાથીઓ, ધારાસભ્યો સામાન્ય રીતે સમૂહ લગ્નમાં જાય, 21,000નો ફાળો લગાવે, સમાજના અમુક આગેવાનોને પકડી રાખે, પણ દેવી પૂજક, રાવણ, માજી રાણા, ઠાકોર, દલિત, આ છેલ્લામાં છેલ્લો જે ગરીબમાં ગરીબ વર્ગ છે અને જેની પાસે રોજગાર નથી, મારી ટીમના સતીશભાઈ, હસમુખભાઈ, અમરનાથભાઈ, અમે સાથે મળીને એટલું ગૌરવપૂર્વક કહું છું કે વીણીને આવા 10-12 હજાર લોકોને મનરેગા યોજનામાં કામ અપાવ્યું છે. આજે સાથીઓ, હું લાંબુ ભાષણ નથી કરવા માંગતો, પણ આજે વડગામના 3 સંકલ્પો તમારી વચ્ચે રજૂ કરવા માંગુ છું. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાની ગેરંટી આપી, પોતાના વચનો આપ્યા, એમ હું તમને 3 વસ્તુની ખાતરી આપવા માંગુ છું. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા સર્વ સમાજના વિદ્યાર્થીઓ માટે ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી નહીં થાય તો ફરી
ડબ્બો લઈને નીકળીશ, પણ એક લાઇબ્રેરીનું, એક પુસ્તકાલયનું નિર્માણ હું વડગામની જનતા માટે કરવાનો છું. મુક્તેશ્વરને કર્માવતનો પ્રોજેક્ટ તો મંજૂર થયો, પણ તમે તમારી ઉઘાડી આંખ સામે આવનારા 5 વર્ષમાં મુક્તેશ્વર ડેમ અને કર્માવત તળાવમાં રેલાતું પાણી જોઈ શકશો. એ તમારા સાથ સહકારથી કરી બતાવીશ. આ બીજી તમને ખાતરી અને ગેરંટી આપું છું. અને ત્રીજી વાત, સરકારે બજેટમાં જાહેરાત કરી, એ વાતને 1.5-2 વર્ષ થયા કે જલોત્રા મુકામે જીઆઈડીસી નું યુનિટ બનાવીશું. હજી એની એક ઈંટ મૂકી નથી. હું તમને ગેરંટી આપી છું કે દુનિયા થાય, રોડ પર કરવું પડે, લડવું પડે, પાલનપુરનું એરોમાં સર્કલ બંધ કરવું પડે, પણ વડગામમાં જીઆઈડીસી નું યુનિટ બનાવીને બતાવીશ. એ વાતની પણ તમને ખાતરી આપું છું. સાથીઓ, આસામની જેલમાંથી છૂટીને આવ્યા પછી મેં એક વાત કીધી હતી. ફક્ત એ વાત કહીને મારી વાત તો પૂરી કરીશ. આપ સૌને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું. નવો ધારાસભ્ય તરીકે હતો, ચૂંટણીના રાજકારણમાં નવો હતો, એટલે એવું થાય કે બસુમાં જાઉં, 42 લોકોને ઘરના પ્લોટ અપાયા હોય એવું બને, પણ હબીબ કાકાને કે રસૂલ કાકાને ઘેર ચા પીવાનું ચૂકી જવું. આટલી ભૂલ થઈ છે. આટલું જાહેરમાં કબૂલું છે. આ ભૂલ આ વખતે ના થાય એની પણ તમને ગેરંટી આપું છું. કબીરે કીધું છે, બડા હુઆ તો ક્યાં હુઆ, જૈસે પેડ ખજૂર, પંછી કો છાયા નહીં, ફલ લાગે અતિ દૂર. પગ જમીન ઉપર જ છે, જમીન ઉપર રહેશે. સદાય તમારી વચ્ચે આવીશ. અને છેલ્લું એટલું કહેવા માંગુ છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો એ હંમેશાથી 5 વર્ષ વિકાસની વાત કરવાની, અને જેવી ચૂંટણી નજીક આવે હિન્દુ મુસ્લિમ મંદિર મસ્જિદ આની વાત કરશે. આપણે વડગામના લોકો છીએ. આપણે વર્ષો સુધી અંબાજી દર્શન કરવા જતા શ્રદ્ધાળુઓને આપણે જોયા છે ને, ક્યારેય એમના હાથમાં તલવાર અને ત્રિશૂળ નહીં હોય. આપણે ગુજરાતના લોકો છીએ. આપણે દ્વારકા ધજા ચડાવતા લોકોને જોયા છે, ક્યારેય એમના હાથમાં તલવાર અને ત્રિશૂળ નહીં હોય. ડાકોર પગપાળા જનારા લોકોના હાથમાં પણ ક્યારેય તલવાર અને ત્રિશૂળ નહીં હોય. અને જે મુસ્લિમ બિરાદરો અજમેર શરીફ ચાદર ચડાવવા જાય છે, એમના હાથમાં પણ ક્યારેય તલવાર અને ત્રિશૂળ નહીં હોય. સમજી લેજો, તમારા હાથમાં તલવાર અને ત્રિશૂળ કોણ પકડાવે છે? એ લોકો પકડાવે છે જેમના જમાઈ અને સાધુભાઈ એ મોટા લાખો કરોડોના ટેન્ડરો લે છે. એ લોકો પકડાવે છે જેમના દીકરા દીકરીઓ લંડનમાં અને અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં સેટ થયા છે. આટલી વાત હૃદયમાં ઉતારજો. અને આપણે એક વસ્તુ સમજવી પડશે. જિગ્નેશભાઈ ભલે દલિત સમાજમાં જન્મ્યા, પણ સર્વ સમાજ માટે ઉભો રહીશ. અને એટલા માટે કહું છું, ઠાકરસિંહ રબારી પર જે કેસ પાછો થયો, કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર બનશે તો કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે પણ લડીને એ ઠાકરસિંહ રબારી પરનો કેસ પાછો. કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર બનશે તો ઉનાકાંડ ઉપરનો પણ કેસ, એ વખતે થયેલા આંદોલનકારીઓ પરના કેસો પાછા લેવડાવીશ. કોંગ્રેસ પાર્ટીની સરકાર બનશે તો છાપીમાં જે CNRC ના કેસ થયા, એ કેસ પણ આપણે પાછા લેવડાવીશું. પ્રધાનજી ઠાકોર ઉપરના પણ કેસ પાછા લેવડાવીશું. અને ડંકાની ચોટ ઉપર કહીએ છીએ, વિપુલ ચૌધરી સામેના પણ કેસ પાછા લેવડાવીશું. આજ આપણી વિચારધારા છે. કોંગ્રેસનો પંજો SC, ST, OBC, માઇનોરિટી અને જનરલ સર્વને સાથે લઈને ચાલે છે. આ પંજાના નિશાન ઉપર 5 તારીખે ભૂકા કાઢી નાખો એવી રીતે ચાપ દબાવજો. મને પાક્કી ખાતરી છે કે આ વખતે તમારું મતદાન ખૂબ ઉજળું થશે. 65-68% વધારે ગુજરાતમાં વોટિંગ થતું નથી. બાકીના જે 30-35% લોકો ઘરે રહે છે, એમને નાગરિક તરીકે આપણે કહીએ કે આ વખતે જરા દબાઈને વોટ કરો, જેથી તમારો તેલનો ડબ્બો અને ગેસનો બાટલો જરા સસ્તા થાય, બાળકોની ફી સસ્તી થાય, હોસ્પિટલના બિલ સસ્તા થાય, ભાડા સસ્તા થાય, કરિયાણું સસ્તું થાય. સાથીઓ, આ મારું વરદાન છે. તમને કેટલાક માણસો ગુમરાહ કરવાની, ગોળ ફેરવવાની કોશિશ કરશે, એમની વાતોમાં આવતા નહીં. હું તમને વચન આપું છું, છેલ્લામાં છેલ્લા માણસનો હાથ પકડીશ. 5 વર્ષ જેવો તમારી વચ્ચે રહ્યો છું,
એવી ઈમાનદારીથી તમારી વચ્ચે કામ કરીશ અને દુનિયા થાય પાણી લાવીને બતાવીશ. આટલું કહીને મારી વાત પૂરી કરી. આપ સૌને વંદન કરું છું. આપ સૌનું વડગામના તમામ જ્ઞાતિ અને ધર્મના આગેવાનોનું, કોંગ્રેસ પાર્ટીના તાલુકા જિલ્લાના ડેલિગેટોનું, સરપંચ મિત્રોનું, કોંગ્રેસ પાર્ટીના તાલુકા જિલ્લાના પૂર્વ ડેલિગેટોનું, પૂર્વ સરપંચોનું, વડગામના એક એક મતદારનું મારી ઉપર એક આજીવન ઋણ છે. પહેલી વખત મને ધારાસભ્ય કોઈએ બનાવ્યો કે વડગામની જનતાએ બનાવ્યો છે. હું જીવું છેલ્લો શ્વાસ ત્યાં સુધી વડગામ સાથેનો નાતો, વડગામ સાથેનો મારો સંબંધ અકબંધ રહેશે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય ભીમ, જય કોંગ્રેસ, જય ભારત. આપ સૌનો ફરી એકવાર હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને આપ સૌની સમક્ષ નતમસ્તક થઉં છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર જિગ્નેશભાઈ. બધા મારી સાથે જોરથી બોલશે. સાચો માણસ, સાચી વાણી, વડગામમાં ફરી. સાચો માણસ, સાચી વાણી. હવે हरपाल सिंह डाभी महाकाल सेना और हरिभाई मगरवाड़िया को विनती करता हूँ स्टेज पर आए, और मैं कन्हैया कुमार जी को भी विनती करता हूँ उनको आज हम कांग्रेस में प्रवेश दे रहे हैं तो उनको कांग्रेस का पत्ता पहना के उनका स्वागत करें. हरपाल सिंह डाभी और हरिभाई मगरवाड़िया. તમને ના ગમે તો શું એ કોંગ્રેસમાં આવે? તાળીઓ પાડો. સમર્થન છે સ્ટેયનું, સમર્થન છે સ્ટેયનું. તમે સ્ટેયથી સંભાળજો. જિગ્નેશ મેવાણીને જંગી બહુમતીથી જીતાડજો. સાથીઓ, હવે જેની ઉત્સુકતા પૂર્વક આપણે રાહ જોઈને બેઠા છીએ, જેને સાંભળવા તમે સવારથી અહીંયા બેઠા છો, એવા ભાજપના પેલું કહેતા ને કે બોર એક ફેર થાય એટલે બીજો બનાવવો પડે, એટલે એક એન્જિન ફેલ થયું એટલે બીજું લગાવવું પડ્યું, એટલે ડબલ એન્જિનની ડબલિયા લોકોની સરકારને પોતાની વાણીના શબ્દોના બહારથી આપણે એક એક પાંખડીને તાર તાર કરી દેતા કનૈયા કુમારને વિનંતી કરીએ કે આપણી વચ્ચે આવે અને ભાજપના કમળના ભૂક્કા બોલાવીએ. કેમ છો? મજામાં તો સારું છે. सबसे पहले ऑफिशियल पेज लाइव कर रहे हैं. मैं आपसे ऑफिशियल पेज लाइव हिंदी में बोलने की इजाजत चाहता हूँ. इजाजत है? और दूसरी बात कि मैं देरी से आया हूँ, इसीलिए आप सभी लोगों से, वडगाम की जनता से, बनासकांठा जिले के आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं देरी से आया हूँ, क्योंकि आने के लिए मैं यहाँ बहुत उत्सुक था, लेकिन कई बार मंजिल प्राप्त करने में देरी हो जाती है. तीसरी बात कि मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आप सबसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं खड़े हो जाएं. और हम सबसे पहले मोरबी में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, मृतकों के प्रति अपना शांति और श्रद्धांजलि व्यक्त करें. धन्यवाद. दोस्तों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, बनासकांठा जिले के वडगाम तहसील के, वडगाम विधानसभा के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, किसान मजदूर भाइयों का,
दुकानदार साथियों का खेती बाड़ी करके, उद्योग धंधा चला करके, मेहनत मजूरी करके, अपना खून पसीना बहा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम नागरिकों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भले मुझे गुजराती नहीं आती है, लेकिन मुझे गुजरात की भावना जरूर समझ में आती है। इसीलिए आप सब लोग पहले से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पूरा जो हमारा सम्मानित मंच है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, प्रभारी, तमाम जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस, सभी पदाधिकारियों को मैं इकट्ठे प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं सीधे मंच से ना बात करके अपनी जनता से बात करना चाहता हूं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में 2019 से है। मैं अपना पहला चुनाव अपनी जन्मभूमि पे जाके लड़ा था, बेगूसराय में, लेकिन मैं वो चुनाव नहीं जीत पाया। जिग्नेश अपना पहला चुनाव अपनी जन्मभूमि में नहीं लड़ा, बडगाम में आकर के लड़ा, और आपने जिग्नेश को विधायक बनाया है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? इस बात में एक गहरा राज छुपा हुआ है। राज ये है कि जिग्नेश भाई के साथ हमारा संबंध ऊना आंदोलन से है, लेकिन आज हम दोनों अगर कांग्रेस में हैं तो वो बडगाम की जनता के चलते हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा था कि बडगाम की ताकत देखिए। पिछली बार जिग्नेश भाई सिलाई मशीन के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। वो सिलाई मशीन लेकर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, और बडगाम की जनता का ताकत देखिए कि आपने सिर्फ जिग्नेश को विधायक नहीं बनाया है, उसको कांग्रेसी भी बना दिया है। तो ये बडगाम के लोगों का आशीर्वाद है, ये बडगाम के लोगों की दुआ है कि वो पिछली बार अपक्ष लड़े थे, लेकिन आपने कहा कि हम अपना आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, अपनी दुआ दे रहे हैं, और इस आशीर्वाद और दुआ में हम ये कामना करते हैं कि आप इस लड़ाई को जो बडगाम में शुरू किए हैं, सिर्फ बडगाम तक सीमित मत रखिए, पूरा गुजरात लेकर जाइए, पूरा देश लेकर के जाइए। और उसी पवित्र उद्देश्य के चलते जिग्नेश भाई आज कांग्रेस का खेस पहन करके आपके बीच में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे पहला आग्रह ये करना चाहता हूं कि ये चुनाव जिग्नेश भाई का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बडगाम की अस्मिता का चुनाव है, बडगाम के इतिहास का चुनाव है, बडगाम के भविष्य का चुनाव है, बडगाम के पहचान का चुनाव है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब आसाम की पुलिस जिग्नेश भाई को पकड़ करके ले गई तो वो एक व्यक्ति को पकड़ करके नहीं ले गई थी, बडगाम की जो लाखों जनता है उसके चुने हुए विधायक को पकड़ करके ले गई थी। इस चुनाव में आपको उस सरकार को जवाब देना है कि हमने वोट दिया है, हम अपना वोट दे करके अपना विधायक चुने हैं, आप हमारे चुने हुए विधायक को जबरदस्ती अपराधी की तरह गलत तरीके से दूसरे राज्य में कैसे जेल में बंद कर सकते हैं, इसका जवाब आपको देना है। और ये बात मैं आपको क्यों कहने के लिए आया हूं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बहुत दूर हैं हम लोग, लेकिन हम आपके बाद आपके बीच आए हैं। इसकी एकमात्र वजह है कि हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं, हम आपसे एक अपील करने आए हैं, हम आपसे एक अनुरोध करने के लिए आए हैं कि आपके कंधे पे पिछली बार से ज्यादा
बड़ी जिम्मेवारी इस बार आ चुकी है। ये जिम्मेवारी इसलिए आ चुकी है कि जिग्नेश के साथ अब आपकी पहचान और जिग्नेश की पहचान एक हो चुकी है। अगर जिग्नेश जीतेगा तो बडगाम जीतेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर जिग्नेश जीतेगा तो बडगाम से एक संदेशा सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में जाएगा कि अगर लड़ने वाले को परेशान करोगे, लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उन बच्चों को अगर तुम तंग करोगे तो उनके ऊपर हम अपना आशीर्वाद देंगे। ये संकल्प आपको लेने की जरूरत है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। अगर ये साधारण चुनाव होता, इस चुनाव की अगर कोई ऐतिहासिक जिम्मेवारी नहीं होती, तो मैं आपको बात याद दिला देना चाहता हूं। दोस्त तो जिग्नेश हमारे तब भी थे ना, जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। मैं आया था आपके बीच चुनाव प्रचार करने। मुझे भरोसा था बडगाम के लोगों के ऊपर कि बडगाम कभी भी नफरत की राजनीति को जीतने नहीं देगी, और आपने जिग्नेश भाई को अपना आशीर्वाद दिया था। आज मैं जो आपके बीच आया हूं तो ये कहने के लिए आया हूं कि सिर्फ गुजरात नहीं, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप जिग्नेश को जिताएंगे तो उन सारे माँ बाप को ये उम्मीद बंधेगी कि अगर हमारा बच्चा गरीब के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, न्याय और अधिकार के लिए लड़ रहा है तो उसके हाथ पर, उसके सर पर भी हाथ रखने वाली जनता इस देश में है। इस बात का भरोसा उनको मिलेगा। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे यह बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री का फोटो आगे लगा करके उनका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं परिवारवाद की बात, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं, और उनका ही गृह मंत्री अपने धीकरा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और उनकी ही पार्टी में 10 से ज्यादा लोगों को, नेताओं के बाल बच्चों को टिकट दिया जाता है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो खाली जीप पे एक भाजपा का प्रत्याशी हाथ हिला रहा था। हमने पूछा ये कौन है, तो मेरे साथ के एक साथी ने कहा मोदी जी का नया परिवारवाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन तो आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है जो इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, इस देश में संविधान को कायम की थी। और आपके ऊपर यह जिम्मेवारी है कि उस संविधान के अधिकार को आपको बचाना पड़ेगा। आपको एक संदेशा देना पड़ेगा इस देश की सत्ता को, इस देश को कि आज भी इस देश में इंसानियत जिंदा है, आज भी इस देश में इंसान जिंदा है। आपको ये बताना पड़ेगा कि नोट की खनक के सामने वोट जो है बडगाम का बिकाऊ नहीं है। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी नोट की ताकत को हम अपने वोट की एकता से हराएंगे। ये बात आपको साबित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि गुजरात में हमारे और भी दोस्त थे, और बीजेपी कैसे लड़ने वाले लोगों को उनके साथ कैसा बर्ताव करती है ये हमको मालूम है। पहले डराते हैं, अगर नहीं डरोगे तो आपको कानूनी मामलों में फंसाते हैं, आपको जेलों में बंद करके रखते हैं। तब भी अगर आप नहीं डरते हो तो फिर आपको नोट दिखाते हैं, और तब भी अगर आप अपना ईमान नहीं बेचते हो तो फिर आपको गोली मार देते हैं। ये हकीकत हमने इस देश में देखा है। इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद लेकर के आपके बीच में आया हूं। ये उम्मीद लेकर के आया हूं कि आप ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई तब यहां मत रहो, सिर्फ बडगाम नहीं जीतना है। बडगाम तो तुम पिछली बार ही जीत लिए थे, पूरा का पूरा गुजरात जीतना है।
आप चाहते हैं कि पूरा गुजरात जीता जाए, तो फिर जिग्नेश भाई को ये भरोसा दीजिए कि जिग्नेश भाई आप बूथ मैनेजमेंट की चिंता मत करो, हम इस नकली चाणक्य को बडगाम में पटखनी दे करके आपको दिखाएंगे। आप नोट की चिंता मत करो, नोट से क्या क्या खरीद सकते हो, नोट से वही खरीद सकते हो ना जो बिकने वाला माल होगा। बडगाम की जनता बिकने वाली नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है ना? तो आप चाहते हैं कि गुजरात जीते, तो जिग्नेश भाई को और भी जगह जाना पड़ेगा ना। जिग्नेश भाई वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और भी नौजवान हैं जिग्नेश की तरह जो अपने अपने इलाके में लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है मोदी जी की हकीकत जो हम लोगों को पता है वो गुजरात की हर विधानसभा की जनता को बताया जाए? तो ये चुनाव जिग्नेश भाई लड़ेंगे कि आप लड़ेंगे? आप लड़ेंगे ना। तो आप लड़ेंगे तो एक बात अपने मन में ठान लीजिए, लड़ाई जब होती है ना न्याय की अन्याय के खिलाफ, तो उसमें कोई धोखा नहीं होता है, कोई दुविधा नहीं होती है। वो लड़ाई जब होती है तो आर पार की होती है ना। अगर आप मोर्चे पे खड़े हैं और मन में दुविधा हो जाए, ये करें कि वो करें, तो लड़ाई तो जीतने से पहले ही हार गए, शुरू होने से पहले ही हार हो गई। आपके मन में भी कोई दुविधा है? मन में दुविधा मत रखिए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली रहता हूं और हमारी यात्रा अभी हैदराबाद से गुजरी है। मैं ज्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता हूं। कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और बडगाम की जनता समझदार तो है। तो आप इशारा समझ रहे हैं ना। मन में अगर दुविधा हो, सड़क पार कर रहे हो या नदी पार कर रहे हो, अगर सड़क पार करते हुए दुविधा हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, और नदी पार करते हुए अगर दुविधा हो जाए तो नाव डूब जाती है। इसीलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। इस देश के भीतर एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कोई व्यक्ति अगर सड़कों पे उतर करके लड़ रहा है अभिमन्यु की तरह, तो वो राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप इस बात को समझते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, तो आप ये मत देखिए कि क्या होगा कैसे होगा, वही होगा जो आप तय करेंगे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं अपना अनुभव आपसे कहता हूं। कुछ नौजवान हमारे पास आए और बोले कि देखिए आपकी बात तो हमको ठीक लगती है, लेकिन हमको ये लगता है कि आपको वोट देंगे तो आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हम बोले एक बात बताइए, ऐसा कौन सा जादू है कि आप वोट हमको दीजिएगा और जीत कोई और जाएगा? ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, इस देश की संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐसा अधिकार आपके हाथ में दिया है, उस अधिकार की ही ताकत है कि मोदी जी का फोटो आगे करके सारा लुटेरा उनके पीछे खड़ा हो गया है लाइन लगा करके, और कहता क्या है, मोदी जी किसके लिए चोरी करेंगे? भतीजा के लिए, अमित शाह के धिगरा के लिए? ऐसा थोड़ी है कि इस भाजपा में सब मोदी जी की तरह है। सबके बाल बच्चे हैं, सब चीफ मिनिस्टर अपने बच्चे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर का बच्चा जो है वो मंत्री बना हुआ है, मंत्री का बच्चा मंत्री बना हुआ है। आपके हाथ में ही वो ताकत है कि 5 साल नेता भले नजर नहीं आए, 5 साल नेता भले आपकी गलियों में ना भटके, लेकिन चुनाव के 15 दिन सारा हेलीकॉप्टर आपके गांव में आके उतर जाता है। यह आपकी ही ताकत है कि जब आप कोरोना में मर रहे थे,
आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, आप अपने अपनों को खो रहे थे, और जान गंवाने के बाद आपको सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो एक भी कैमरा नहीं आया था। क्या दोस्त, चुनाव नहीं होता तो बडगाम आते क्या? चुनाव है तभी ना आए हैं। मामला टीआरपी का है, तो टीआरपी देता कौन? ये टीआरपी कौन देता है? ये आप देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जिसके जुल्म से आप परेशान हैं, उसको ताकत आपने ही दी है, उसको शहद आपने ही चटाया है। उसको अगर आप शहद नहीं चटाए होते तो आज आपका खून पीना नहीं शुरू करता। यह बात आप समझ लीजिए कि संविधान ने यह ताकत दे दी कि टोपी वाला का वोट भी एक होगा और टिक्का वाला का भी वोट एक होगा, फॉर्च्यूनर पे चढ़ने वाले का भी वोट एक, हेलीकॉप्टर पे चढ़ने वाला का भी वोट एक, और हमारे जैसे फुटपाथ पर चलने वाला का भी वोट एक, महिला का भी वोट एक, पुरुष का भी वोट एक, अमीर का भी वोट एक, अंबानी जी का भी वोट एक, और उनके ड्राइवर का वोट भी एक। ये जो वोट की ताकत हमारे हाथ में नहीं होती तो आप देखते रंग राजा राजवाड़े की बात करते हैं, जिसके ऊपर राजकुमार होने का आरोप लगाते थे, वो रोज 25 किलोमीटर देश की सड़कों पर पैदल चलता है, और जिसके ऊपर आपने भरोसा किया कि ये हमारी रक्षा करेगा, वो आपको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकता है तो इससे हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? जब देश में महंगाई 45 साल में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पे चला गया है, तब हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? ये जो खेल है ना, ये खेल इस देश में पहले भी खेला गया है। मैं कहता हूं कि बस आपको याद करने की जरूरत है। जब देश के किसानों ने यह फैसला लिया कि हम अंग्रेज अफसरों को लगान नहीं देंगे, ये हमारी धरती माता है, इस पे हम मेहनत करते हैं, हम फसल उगाते हैं, ये 3 में की 13 में हम इसको लगान नहीं देंगे, तो अंग्रेजों ने किसानों की उस एकता को तोड़ने के लिए एक साजिश रची। सुअर मस्जिद में फिकवाए गए, गाय मंदिरों में फिकवाया गया, इंसान को आपस में लड़ाया गया, और इंसान जब आपस में लड़ते हैं तो उनके मुद्दे गायब हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और मुद्दा अगर कोई है आज हमारा, तो वो मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। ये हमारा मुद्दा है, और इस मुद्दे पे अगर आप वोट करना चाहते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप जब वोट करेंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आप एक उम्मीद का सितारा चुनेंगे। इस बात को याद रखिएगा। हम कहते हैं जहां समस्या पैदा हुई, समाधान भी वहीं मिलेगा ना। आप सोचिए कि आपने मोदी जी को एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। अब पूरा देश गुजरात मॉडल का मजा चख रहा है। इसका निराकरण कैसे होगा? इसका निराकरण होगा जब हम आंख बंद करके बिना सोचे कि ये लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक व्यक्ति को एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बात को पुनर्स्थापित करने की है कि गुजरात गांधी और पटेल का था, है और रहेगा। इस बात को साबित करने की जरूरत है। और क्या कहते थे गांधी? गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने गुजरात की एक खूबसूरत चीज देखी। हर गांव के बाहर
एक चबूतरा बना होता है और उस चबूतरे में पंछी आकर के दाना खाते हैं, पानी पीते हैं। आप तो गुजराती लोग हैं साहब, बेजान पक्षियों को दाना और पानी देते हैं। देश दाना और पानी के लिए मोहताज हो रहा है। आपसे आग्रह करते हैं कि आप देश को भी दाना और पानी दीजिए। आप अगर फैसला लेंगे और बिना दुविधा के लेंगे तो पूरे देश को एक मैसेज जाएगा। आप पूरे देश को यह मैसेज दे सकते हैं कि गुजरात का चुनाव इस बार धर्म के आधार पर होने वाली नफरत पे नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार लोगों के उसके पहचान के आधार पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इसके आधार पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार हम कैसे पूजा करते हैं, कैसे इबादत करते हैं, इस पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार इस मुद्दे पर हुआ है कि मोरबी की जिम्मेवारी कौन लेगा, इस बात पे हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार इस बात पे हुआ है कि जब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़ करके दिल्ली चले गए, अब दिल्ली से चले गए हैं विदेश घूमने के लिए, तो गुजरात को कौन देखेगा। गुजरात में आपने पहले भी गांधी और पटेल पैदा किया था, आज भी आपके बीच में ऐसे नौजवान हैं जो उन सपनों को साकार कर सकते हैं। उन नौजवानों को आशीर्वाद देने की जरूरत है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मोदी जी गुजरात से हैं, मोदी जी गुजरात से हैं, मोदी जी से गुजरात नहीं है, ये संदेशा आपको इस बार के विधानसभा चुनाव में देना पड़ेगा कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया और आप हमको फुटबॉल बना के छोड़ दिए हैं। एक जर्नलिस्ट बोला कि आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। हम बोले देखिए अभी तो हमको बहुमत नहीं मिला है, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम जो है नाम भी तय कर लेंगे, लेकिन जिसको आशीर्वाद मिल रहा है उससे जरा पूछ के बताइए कि वो अगला बार मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा। भूपेंद्र पटेल साहब सो रहे थे, आप वीडियो देख लीजिएगा, उनको नींद आ रही थी, ऊँघ रहे थे वो, उनको मालूम ही नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। और रूपानी साहब को मालूम ही नहीं था कि उनको एमएलए का भी टिकट नहीं मिलने वाला है। तो ये कौन तय कर रहा है। पहले आनंदीबेन पटेल साहिबा थी, फिर रूपानी साहब आए, फिर भूपेंद्र पटेल आ गए। कल को क्या गारंटी है कि कौन होगा। जैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए नियम बदल गया तो हो सकता है कि जैसा ही हो, नहीं हो सकता है। और ये सबको मालूम है। मैं बाहर से आया हूं, मैं आपको क्या बताऊंगा साहब, अभी आया हूं चला जाऊंगा। मैं तो अपना प्रेम, अपनी एकता और अपनी निष्ठा आपके साथ जो है वो दिखाने के लिए आया हूं। लेकिन आप तो यहां रहते हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप तो जानते हैं कि जिग्नेश न्याय के लिए लड़ने के चलते ही जेल गए। आपको मालूम है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो बडगाम के पास ऑक्सीजन प्लांट था। आप जानते हैं कि आपके आशीर्वाद के चलते ही जिग्नेश आज अपक्ष नहीं है। जैसे बडगाम कांग्रेसी है वैसे ही जिग्नेश भी कांग्रेसी है। आप ये जानते हैं कि आपके तरह अगर पूरा देश सोचने लगे, बडगाम की जनता की तरह अगर पूरा गुजरात सोचने लगे तो गुजरात में परिवर्तन के संकल्प को कोई रोक नहीं सकता है। आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गांधी की धरती के लोगों को ज्ञान दे सकूं। मेरा एक रिश्ता जरूर है। मेरा एक रिश्ता है कि आपने गांधी को पैदा किया मोहनदास के रूप में, मोहनदास करमचंद के रूप में। मैं बिहार से आता हूं, उस बिहार की धरती ने उस मोहनदास को महात्मा गांधी बनाने का काम किया है। मैं वो भावना लेकर के आपके बीच में आया हूं कि जो न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनको आपके समर्थन की जरूरत है। वैसे ही
जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, तो खेलते 11 लोग ही हैं, लेकिन 100 करोड़ जनता की भावना उनके साथ होती है। लड़ेंगे हम ही लोग, लड़ रहे हैं राहुल गांधी, और आज वहां से बड़ी गुजारिश मिन्नत करके मैं आपके बीच आया हूं। लड़ेंगे हम ही लोग, लेकिन इस लड़ाई की जिम्मेवारी आपको अपने कंधे पर भी लेनी पड़ेगी। ये लेने के लिए तैयार हैं? तो जिग्नेश भाई को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है ना, दूसरे जगह भी चुनाव प्रचार करेंगे ना। तो ये लड़ाई अब नोट और वोट के अधिकार के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई अब वो जो सत्ता अभिमान में और गुरूर में चूर है उसके बीच, और बडगाम की जनता का जो सच है उसके बीच में है। ये लड़ाई नोटों के दम पे खरीदे गए लोग और अपने ईमान से जिंदा लोगों के बीच में है। अगर आप जिंदा हैं तो ये लड़ाई आप हर हाल में जीते थे, जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ एक आखिरी अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। दोस्तों, देश के अंदर एक गंभीर परिस्थिति है। गंभीर परिस्थिति ये है कि हर किसी का असली मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि गुजरात में बिजली बिल सबसे ज्यादा वसूला जाता है। गुजरात की हालत ये है कि किसानों को उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। गुजरात की हालत ये है कि मनरेगा की बात जिग्नेश कर रहे थे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसके अंदर किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि टीवी जो मुद्दा दिखाता है ना, उस मुद्दे पे वोट मत कीजिए, और टीवी जिसको प्लेयर बताता है ना, उस प्लेयर को प्लेयर मत समझिए। आंख बंद करके सोचिए कि आपका मुद्दा क्या है। और आपको यदि लगता है कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हुए आपको ऐसा महसूस होता है कि सिरिंज से कोई खून हमारा निकाल रहा हो, ज्यों-ज्यों मीटर बढ़ता है त्यों-त्यों धड़कन तेज होती है। अगर आप महंगाई से परेशान हैं तो आप महंगाई के खिलाफ वोट कीजिए। अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं तो आप बेकारी के खिलाफ वोट कीजिए। अगर आप किसान हैं और आपको आपके फसल का दाम नहीं मिल रहा है तो है, और आपको ये महसूस होता है कि इस देश के भीतर जब किसी बलात्कारी की संस्कार की व्याख्या की जाएगी, जब आपको लगता है कोई घटना सुन करके कि प्रेम के नाम पे किस तरीके से लोगों का कत्लेआम किया जाता है, आपको अगर लगता है, जब आप सड़क पे चलते हैं और सुरक्षा अगर महसूस होती है, तो आप नारी के न्याय के लिए वोट कीजिए, महिला सुरक्षा के लिए वोट कीजिए। अगर आप नौजवान हैं और आपको ये महसूस होता है कि आपका पिताजी गृह मंत्री नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, तो अपने कैरियर के लिए वोट कीजिए, अपने हक और अधिकार के लिए वोट कीजिए। यही अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूं। और कांग्रेस पार्टी एक प्रॉमिसिंग, फाइटिंग, लीडिंग अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। और हमने जो 8 संकल्प लिया है, वो 8 संकल्प कांग्रेस पार्टी हर हाल में पूरा करेगी। बेरोजगारी भत्ता का सवाल हो, कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के मुआवजा का सवाल हो, किसानों को कर्जा माफी का सवाल हो, तमाम लोगों को इलाज का बीमा देने का सवाल हो, बिजली बिल कम करने का, बिजली यूनिट फ्री करने का सवाल हो, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उन कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट बहाल करने की बात हो। अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो होमगार्ड हमको मिले गाड़ी चेक करते हुए। उनकी वर्दी की जो हालत थी उसको देख करके हमने अपने चालक साहब को पूछा कि ये गुजरात पुलिस से नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुजरात पुलिस से ही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। और वो कॉन्ट्रैक्ट पे होने के चलते आपको देख करके पता चल जाएगा कि जीवन का अंतर क्या है। एक ही ड्यूटी करते हुए 2 इंसान का वर्दी देख करके आप समझ जाएंगे कि उनके जीवन की असली हालत क्या है। आप पशुपालकों से बात करके देखिए किस तरीके से आज उनकी चारागाह की जमीनें छीनी जा रही हैं। आप आदिवासियों से जाकर के बात कीजिए किस तरीके से उनके जल जंगल जमीन का अधिकार छीना जा रहा है। और आप इस देश की अक़लियत से बात कीजिए कि बार बार किसी न किसी मुद्दे से किस तरीके से ध्रुवीकरण करके एक डर का माहौल पैदा किया जाता है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने जो 8 संकल्प लिया है, उस संकल्प को परिवर्तन का आधार बनाने के लिए वोट कीजिए। और हमारा पूरा भरोसा है
उसी भरोसे के बीच हम आपके बीच आए हैं कि आपने पिछली बार भी एक संदेशा दिया था, वो संदेशा गुजरात के लिए था। इस बार भी वो संदेशा दीजिए, वो संदेशा सिर्फ गुजरात के लिए नहीं हो, पूरा देश के लिए हो। और पूरे देश के नौजवानों के बिहाफ पर मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि जब आप वोट करने के लिए जाइएगा, अपने घर के बच्चों को, उसके भविष्य को और नौजवानों के बारे में सोचिएगा। हमारा भविष्य आपके हाथ में है। इस देश में अगर राजनीति का मुद्दा नहीं बदलेगा, इस देश में अगर रोजगार के सवाल को, महंगाई के सवाल को, किसानों के उनके फसल के सवाल को, मजदूरों के उनकी मजदूरी के सवाल को, जो छोटे व्यापारी हैं, जीएसटी और नोटबंदी के सवाल को अगर राजनीतिक विमर्श में नहीं लाया गया तो इस देश में लड़ने वाले लोग हताश हो जाएंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि आप लड़ने वाले लोगों को हताश नहीं होने देंगे। होने देंगे क्या? तो ये चुनाव आपका चुनाव है ना, बूथ मैनेजमेंट आप करेंगे ना, प्रचार आप करेंगे ना, पोलिंग एजेंट आप बनाएंगे ना। आपने अगर ये तय कर लिया है ना, तो हम रिजल्ट का दिन का इंतजार नहीं करेंगे। आप तय कर लिया है ना, जोर से बोलिए, कोई दुविधा नहीं है ना। तो हमको तो रिजल्ट का इंतजार नहीं है। मैं अभी परिणाम निकाल करके जा रहा हूं कि अपना भाई जिग्नेश मेवानी सिर्फ बडगाम का नहीं, पूरे गुजरात में एक परिवर्तन का आवाज बन करके उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब खूब आभार।